Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your reality 3 years from now. What kind of life you're living 3 years from now is बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even select your pile according to your date of birth. So pile 1 we have fire rabbit, pile 2 earth horse, पाइल 3 मेटल रैट. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको वार्म फील करा रहा है, वो एक कार्ड पिक करना. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी अगर इन कार्ड्स का पास है तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको वार्म फील करा रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. पर अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सेलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the fire rabbit. It says welcome the muse, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपके बारे में क्या कह रही है 3 years from now? जो आपकी लाइफ है वो कैसी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर सेल्फ देना चाहती है अबाउट योर लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ, वो इंफॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. पाइल 1. ओके, वी आर विजनरी. What I see here with this card is that you guys are not forcing yourself anymore, because I do feel pile 1 you guys are the people जो चीज़ों को अपने आप को फोर्स करते हो in doing things because you feel like कि अगर मैं अपने आप को पुश नहीं करूँगा या करूँगी तो फिर काम होगा ही नहीं. So you're like right now जो एनर्जी आपकी आ रही है, even with this card I just felt that you're pushing yourself right now in the present time. Whenever you're watching this reading, you're pushing yourself to do your best, you're pushing yourself to do something which you don't want to do, but you know कि it's life, so we need to suck it up. And हम हमेशा अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते, मन मर्जी नहीं कर सकते. But what I see like 3 years from now is that your future self says that you are the visionary, you are the one जो vision create करता है और वैसी वैसी चीज़ें हो जाती है. You are not the one who is chasing, but you are the one who is attracting. मतलब universe is working in your favor. This is what the future self is saying. जो आपके साथ हो रहा है 3 years from now वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत 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 अच्छा हो रहा है, और आप निश्चिंत नज़र आ रहे हैं, आप बहुत काम पीसफुल नज़र आ रहे हैं. Then we have the networker card and the mother card as well. So the networker here shows me that you have a big network, you have strong connections with others, you are someone जो बहुत social है 3 years from now. Like you are someone, pile number 1, जो दूसरों को nurture करता है, and people love that.
People love that about you because we have the mother card here. Mother is all about patience, unconditional love, nurture karna, and it's about, again, spreading love. This card energy is about spreading love. So people love your energy, pile one. You guys are the people जो 1 year 3 years from now you guys can actually become someone जो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है. यू आर द वन जो जिसके बहुत सारे कनेक्शंस है, वेदर द पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, वेदर पीपल हु आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, पीपल हु आर into business, like you have connections with all of them and you have helped them. मतलब आपने उनकी मदद करी in some way, and those people really want to do good things for you and they do good things for you क्योंकि आपने भी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करी है. तो एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा नेटवर्क मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए. यू आर समवन, फाइल नंबर 1, जो 3 years फ्रॉम नाउ, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है, वो ये बता रही है कि 3 years फ्रॉम नाउ यू आर द वन जिसके पास बहुत लविंग कनेक्शन है, प्यार की कोई कमी नहीं है, जो शायद अभी है बट आने वाले समय में प्यार की एज सच कोई कमी नहीं है. आपके पास बहुत सारे लोग होंगे अपने अराउंड who will love you unconditionally and you will love them unconditionally. And yes, for some of you, you guys can literally become parents 3 years from now, or you may have a pet dog or a cat or maybe a rabbit. All right. I see that 3 years from now you have a very good relationship with motherly figure or with your own mother. You're staying with your mother, you're living with your mother, you're having a good time with your mother. And I see some of you are becoming psychic readers, are becoming astrologers, and that too famous astrologers or famous tarot card readers, because जो आपके पास, आपके हाथों में, आपके पास जो स्किल है वो और किसी के पास आज सच नहीं है. आपका इंट्यूटिव माइंड बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो जो आप सोचता है सच में वैसे वैसा हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more for pile 1. So we have distant horizon. So this shows me that 3 years from now you're somewhere else only. जहाँ पर आप अभी बैठे हैं वहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ से आप काफ़ी दूर जा चुके, एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या मे बी एक डिफरेंट कंट्री में जा चुके हैं. All right, and then we have high honor. I already told you, you guys are the people जिनके connections उन लोगों से है जो मे बी politicians हैं, high up in the government काम करते हैं, जिनके पास political power है, money wise power है, वैसे powerful लोगों के साथ आपके connection है. With the high honor card आपका भी बहुत बड़ा है, आपका भी high honor है. pile number 1, you guys are the people जिनको लोग बहुत respect करेंगे. एक respectable profession में मुझे आप नज़र आ रहे हैं और एक ऐसी जगह पर अपनी लाइफ में आप पहुंच जाते हैं 3 years फ्रॉम नाउ जहां लोग आपको जानते हैं, जहां पर आपको नेम फेम मिलता है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं आगे रखा जाता है, पहले रखा जाता है दूसरों से, कहीं ना कहीं आपकी बड़ी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में. सो दिस इज़ हाउ आई सी यू. All right, this is what your future self is describing. It is describing your life 3 years from now. And we have the main female. Yeah, you are the main lead. All right, whether you're a male, whether you're a female, whatever. Pile number 1, it's not a gender-based reading, but yeah, it does shows with the main female card here that you are the one जो प्रोटैगनिस्ट है, यू आर द वन जो हीरो हीरोइन है, यू आर द वन जो मतलब मेन कैरेक्टर है, मेन यू आर द वन जो स्पॉटलाइट में है. ऑलराइट, दुनिया का ध्यान आप पर जाता है, सभी का ध्यान आप पर. व्हेनेवर यू विल एंटर अ रूम, बेसिकली यू आर द एलिफेंट ऑफ द रूम, मतलब जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. आपकी बात होगी ही होगी जहाँ पर भी आप जाएंगे, और लोग आपसे बड़ा ऐसा, जब आप कहीं एंटर करते हैं लोग हैरान होते हैं कि आप आए हैं, या आपके प्रोफेशन के बारे में जब वो जानते हैं तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा आप इस प्रोफेशन में हैं. नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है. देखिए, सिंपल सीधी बात है, आपको भी वैसे तो ये बात पता है, मुझे भी पता है कि सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट है जिसके पास धन बहुत है, जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर बहुत है, उसकी रिस्पेक्ट है ऑब्वियसली, राइट. और किसकी रिस्पेक्ट है? और जैसे अगर हम प्रोफेशंस में जाएं तो जो संत महात्मा होते हैं इनकी भी बहुत रिस्पेक्ट होती है है ना. बाबा लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है, एस्ट्रोलॉजर्स की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है.
पॉलिटिशियन की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है, एक IAS IPS ऑफिसर की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है, या कोई जो फाउंडर है किसी कंपनी का उसकी भी रिस्पेक्ट है, राइट? तो आप इन्हीं प्रोफेशंस में से हैं. एंड व्हाट आई सी विद द विजनरी कार्ड, यू आर द फाउंडर ऑफ समथिंग, you are the creator of something, you are the one who is going to do something big in the next 3 years, and 3 years from now आपको बहुत सक्सेस मिलती है, बहुत सक्सेसफुल आप हो जाते हैं. you are the main lead. आप अपने रिश्तेदारी में भी, अपने रिलेटिव्स में भी कहीं पर जाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मतलब सम्मान, प्यार, मतलब सब मिलने वाला है. so this is how your life is going to be like. ऑलराइट, यहाँ कुछ हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं मेन ठहरों से कि क्या एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 के करियर के बारे में. पाइल नंबर 1 का करियर, we have the death here. I already told you many of you are into occult practices, many of you are astrologers, reiki healer, crystal healer, tarot mysticism से related आप काम करते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग सर्जन हैं, आप में से कुछ लोग दूसरों को जियदान देते हैं, आप में से जो कुछ लोग हैं, आप लोग I would say even builders भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर बिल्डिंग समथिंग, तो आप एक बिल्डर भी हो सकते हैं. विद द डेथ एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो कोई ऐसा करियर जहाँ पर आप किसी चीज़ को या लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऐसे करियर में आप हैं, या जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में. ऑलराइट, इट कैन इवन हैपन दैट यू आर अ जिम ओनर. You are someone who is a trainer and eventually become 3 years from now a gym owner. You are transforming other people's physical health, physical body, right? You can also be a nutritionist, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा nutritionist, मतलब जिसके बहुत सारे clients हैं, जिसको दुनिया जानती है. ऑलराइट, एक बड़े स्केल पर, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं 3 years from now एक बड़े स्केल पर है. नेक्स्ट 3 years में काम को बहुत अच्छा आप ग्रो करा लेते हैं. वी हैव चैरियट. चैरियट लिटरली फॉरवर्ड मूवमेंट और विक्ट्रीज का कार्ड है. चैरियट इंस्पिरेशन का भी कार्ड है. चैरियट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन. सो वी नो विद द चैरियट एनर्जी, क्योंकि करियर के लिए आई है, तो करियर वाइज आप सही डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में और इंस्पायर करते हैं दूसरों को, और खुद भी इंस्पायर्ड रहते हैं, और आप विक्टोरियस बनते हैं. चैरियट इज ऑल्सो अबाउट नेम एंड फेम. विद द चैरियट एनर्जी, पाइल नंबर 1, yeah, there can be certain disabilities. Some of you deal with some kind of disability, और some of you may deal with some kind of health issues जो बार बार मतलब आते रहते हैं लाइफ में. अगेन यू कैन बी एन एरीज राइजिंग पर्सन, वर्गो राइजिंग पर्सन, या मून एरीज का है, मून वर्गो में है, या यू कैन बी अ स्कॉर्पियो राइजिंग पर्सन, या मून स्कॉर्पियो का हो सकता है. ये कंडीशंस ये शो करती हैं कि आप अपनी लाइफ में हर रोज़ कोई ना कोई हेल्थ इशू से डील करोगे. दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर प्रारब्धा. कभी पेट में दर्द है तो कभी सिर में दर्द है, कभी कोई मसल इंजरी होगी, कभी कोई और ऐसा छोटे मोटे कट्स और ब्रूजेस लग गए. मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, कम ज़्यादा ऐसा हेल्थ इशू चलता रहेगा. वी डोंट हैव अ रेमेडी फॉर दिस, बिकॉज कई चीज़ें हम भुगतने के लिए भी पैदा होते हैं. बट irrespective of the disability, irrespective of health issues, I see you flourishing. जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो ये भी बताते हैं कि अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे. बट उसके बावजूद वो संत महात्मा भी हेल्थ इशू से डील करते हैं. आप कोई भी इस दुनिया में ले लो जो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा है, ये तो हमने स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करी, आप इवन अंबानी फैमिली को देख सकते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट. आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं. आई थिंक ही इज़ द रिचेस्ट मैन राइट नाउ ऑन अर्थ. यू कैन सी हिम एज वेल. धन पूरा है पर हेल्थ इश्यूज भी पूरे हैं, कम नहीं है. तो जब धन आता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ हर कोई थोड़ा देखे
सफ़र करने तो आया है। किसी की जेल जो है सोने की जेल है, किसी की जेल बिल्कुल भी लग्जरी जेल नहीं है। ये जो शरीर है पंच तत्वों का बना है और पंच तत्व अर्थ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में भी वो इम्बैलेंस दिखेगा क्योंकि हम भी उसी पंच तत्व से बने हैं। जब वीनस धन है, वीनस मनी है, जब वीनस राहु से कंजंक्ट होता है या ट्राइन फ्रॉम राहु होता है, वीनस के आगे वाले घर में राहु होता है, इट शोज़ एक पर्सन अमीर डेफिनेटली बनेगा, वेल्दी डेफिनेटली बनेगा, आफ्टर मैरिज बनेगा, बिफोर मैरिज भी बन सकता है, बट स्पेसिफिकली आफ्टर मैरिज बनता है ऐसा इंडिविजुअल, बहुत ज़्यादा धनी, बहुत ज़्यादा अमीर। पर साथ में ऐसे व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड इश्यूज़, ऐसे व्यक्ति की वाइफ बीमार रहना, हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वीनस मनी है, वेल्थ है, राहु एक्सपेंशन है, तो वो मनी वेल्थ को एक्सपैंड करेगा, डेफिनेटली करेगा। वीनस मैरिज है तो मैरिज के बाद एक्सपेंशन ऑफ मनी विल हैपन, बट क्योंकि राहु नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सपैंड कर देता है, तो वीनस किडनीज को रिप्रेजेंट करता है। वीनस के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स में तकलीफ आना शुरू हो जाएगा। वीनस केतु से कनेक्टेड है, ट्राइन फ्रॉम केतु है, या वीनस के आगे केतु एक ट्रिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है। पर ऐसे पर्सन के पास पैसा डेफिनेटली आएगा, स्पेशली आफ्टर मैरिज आएगा। पर ऐसा व्यक्ति जो है जब धन आएगा तो धन से बड़ा डिटैच्ड हो जाएगा। वो चाहेगा कि मैं दुनिया की सेवा करूं, मैं अनप्रिविलेज्ड के लिए कुछ करूं, तो वो धन को ज़्यादा इंजॉय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको मनी इतना इंजॉयबल लगेगा नहीं, एज सच नहीं लगेगा। वीनस राहु वाला आप देखेंगे कि नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस हमेशा पहने हुए होंगे। वीनस केतु वाला भी नेम ब्रांड वॉच, नेम ब्रांड वॉचेस, नेम ब्रांड क्लोथ्स या वॉचेस पहनेगा, बट वो बहुत उसके ब्रांड्स जो हैं, लोगोस जो हैं उसकी टी शर्ट पर, शर्ट पर ज़्यादा दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता है। तो they like to have silent luxuries in their life, whereas Venus Rahu, it is the luxury will be very much in front of you, मतलब बड़ा बड़ा कोई ब्रांड का लोगो उनके टी शर्ट पर ज़रूर बना होगा, दैट इज़ वीनस राहु। बट ये क्योंकि मलेफिक है ना राहु केतु, तो जैसे ही धन ज़्यादा आने लगेगा हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा देगा, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर हर कोई अपना हिसाब किताब चुकाने आया है, तो किसी ना किसी वे में तो चुकाता है व्यक्ति अपना बैड कर्मा। सो हेयर विद द चैरियट एनर्जी, डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आपके भी कुछ अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है अपनी बॉडी के साथ। तो बॉडी वाइज चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर पैसे भी आप बहुत अच्छे कमाते हैं, फिर भी लाइफ को बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं, एक पॉजिटिव इंसान है आप, पाइल नंबर 1। About again money, finance, we have with the 6 of swords, I feel many of you will have Venus Ketu combination। तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, Venus Ketu वाली फीमेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म में। फिर मेल वाचिंग दिस रीडिंग, तो मार्स केतु कंजंक्ट होंगे, मार्स केतु कैन बी ट्राइंग फ्रॉम ईच अदर, अगेन इट मेक्स यू वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन मेक्स यू गाइस इंट्रोवर्टेड एज वेल, वेदर मेल फीमेल इंट्रोवर्टेड आप हो जाते हैं, केतु इंट्रोवर्ट बनाता है। तो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे मनी आता है ना, आप इतना अटैच नहीं है मनी से, दैट्स वाई यू आर द विजनरी, दैट्स वाई यू आर द मदर। जैसे ही पैसा बहुत सारा आपके पास आता है, जो कि आएगा इन द नेक्स्ट 3 years, so 3 years फ्रॉम नाउ यू वॉन्ट टू नर्चर अदर पीपल, यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, स्पेशली जिनकी पेरेंट्स नहीं है, अनाथ जो हैं, अनाथ बच्चे जो है, आप उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। यू आर गोना बी द मदर और यू आर गोना बी द फादरली फिगर फॉर देम, मतलब आप उनको प्रोवाइड करोगे, आप उनको ऑब्वियसली गुड एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, या अच्छा खाना प्रोवाइड करोगे, उनको प्यार दोगे। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, वो रोते नहीं हैं, वो कहते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमें पता है कि हमें चुप कराने वाला कोई नहीं है, तो वो रोते भी नहीं है। मेरे जिसके माँ बाप होते हैं वो रोता है, वो बच्चा रोएगा, क्योंकि उसे पता है कि कोई ना कोई तो आएगा ना मेरे को चुप कराने। तो विद द मदर कार्ड हियर, विद द नेटवर्कर कार्ड, विजनरी कार्ड, आई डू फील दैट यू वांट टू, व्हेन मनी कम्स इन, तो आप अभी जैसे आपको भूख हो सकती है कि मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जब पैसे आ जाते हैं यू आर लाइक ओके नाउ व्हाट, आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये होगा वो होगा, पर इस मनी को जैसा मैंने सोचा था मैं इंजॉय करूँगा या करूँगी, उतना मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को इन्जॉयमेंट तब लगता है जब इस मनी से कोई किसी को खाना मिले, या कोई जो है उसको उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि मेरी तो पूरी हो चुकी है ज़रूरतें।
तो आप कहीं ना कहीं वीनस केतु वाले इंडिविजुअल मेरे को नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1. यू गाइज आर द पीपल हु इज़ गोना डू समथिंग फॉर डेफिनेटली फॉर किड्स, फॉर women, and will bring smile on other people's face. This is what you're going to do, and that gives you true happiness. तो humanitarian philanthropist आप नज़र आ रहे हैं. Then we have the hanged man. This card came for your personal life, love life. With the hanged man energy, I see that you guys, let me pull another card, one more card. Okay, yeah, we have temperance. Okay, I don't see कि यहाँ कोई love romance से related indication है. I don't see this. What I see here is कि you are you may adopt kids, you may adopt some pet dog or a cat. You guys are here to bring some kind of balance in other people's life. You're balancing your parents' life, you're managing your parents or your family's health, you're doing something good for your family, you're providing for your family. With the hanged man, I do see that जो लोगों को लगता है कि सोसाइटी कहती है कि अब पैसे वैसे कमा लिए हैं, करियर सेट है, अब सेटल डाउन हो जाओ, मीनिंग दैट यू शुड गेट मैरिड एंड हैव किड्स. फॉर यू हैंगमैन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो करता है. फॉर यू सेटलमेंट इज़ नॉट मैरिज, सेटलमेंट इज़ नॉट हैविंग चिल्ड्रन. ट्रू सेटलमेंट जो उसकी डेफिनेशन है सेटलमेंट की, वो आपके लिए बहुत डिफरेंट है. मे बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट इन लाइफ इज़ व्हेन यू सेटल अदर पीपल इन लाइफ. मतलब यहाँ पर भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनकी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं. तो एज इन मेरे को मैरिज, एज इन मेरे को जो है कोई लव रोमांस नहीं नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में. मुझे ये नज़र आ रहा है दैट यू गोना हेल्प लॉट ऑफ पीपल एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड दैट्स ट्रू सेटलमेंट फॉर you. Taking care of your parents, taking care of your family, that's the true settlement for you. Ye nazar aa raha hai. Something about your physical and mental health. We have the Page of Swords. Page of Swords here shows that you are 3 years from now, you're still trying to understand your body, mind and soul. You are like trying different foods, different diets, different workout routines, because you're someone, pile number 1, जो routine से बोर हो जाता है. तो even exercise में, खाने पीने में, you want different routines, you want different kind of food, different kind of exercise. So ऐसे आप changes ऐसे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. और with the Page of Swords here, in personal life and physical and mental health, I do see that you are feeling like a child. You're feeling that you are able to heal your inner child. You're doing things which makes your inner child happy. बचपन में जो टॉयज़ आपके माँ बाप नहीं आपको खरीद कर दे पाए, वो टॉयज़ आप खरीदते हैं और समय होता है कि उन टॉयज़ के साथ आप खेलें. So you are playing sports, you are playing some games, you have time to chill, you have time to relax. So you're living a very happy life. You're living a life, ऐसा करियर आपका है जहाँ पर आपको हर रोज़ हमेशा ये 100% प्रेजेंट नहीं होना पड़ता. इसके कारण से ही आपके पास समय बचता है अपने साथ स्पेंड करने का. So you're actually living your best life. You're actually living your best life. आप ऐसे बंधे नहीं हुए कि भाई इस समय पर आपको बैठना ही है, अपने वर्क प्लेस पर बैठना ही है, अपनी टेबल पर, इसके बिना काम नहीं चलेगा. नो, यू कैन इवन ट्रैवल एंड कैन वर्क रिमोटली, और इफ़ यू वांट टू टेक ऑफ यू कैन टेक ऑफ. तो ऐसा होगा, एक फ्रीडम होगी काम में. सो दिस इज़ हैपनिंग. Then we have Capricorn. It says sovereign. So बहुत एक इंडिपेंडेंट आप काम मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक इंडिपेंडेंस है. You are the boss lady or you are the boss man. All right. The Capricorn, आप अपने कर्मों से जाने जाते हो. Saturn रूल करता है Capricorn को, और Saturn कर्म कारक है, करियर को सिग्निफाई करता है. तो आप अपने करियर की वजह से दुनिया में पहचाने जाओगे. आपका करियर, आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी विल बिकम योर रियल आइडेंटिटी. सो लाइक इन माई केस, शायद लोग मेरा नाम भूल जाएं, पर लोग ये ज़रूर याद रखते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ. तो मेरा जो प्रोफेशनल या टेरो कार्ड रीडर हुई, तो मेरा प्रोफेशनल आइडेंटिटी ने मेरा रियल आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं छुपो दिया. एक डॉक्टर है,
एक व्यक्ति, तो नाम उसका दूसरों को याद रहे ना रहे, पर ये ज़रूर याद रहेगा कि ये पर्सन यहाँ रहता है और ये डॉक्टर है, राइट? उसी तरह पाइल नंबर 1, आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी विल बिकम योर रियल आइडेंटिटी. आपकी प्रोफेशन से लोग आपको जानेंगे. वी हैव मार्स, इट सेज इनिशिएटिव. सो विद द मार्स एनर्जी यू आर लिविंग वेरी फ्रीली, यू हैव फ्रीडम. ऑलराइट, यू आर नॉट लिविंग your life according to others. You can be called a rule breaker or rebellious person, but the reality is that you're living your best life. You're doing things which you always wanted to do. You have the freedom. You feel like that हाँ, मैं जो करना चाहती हूँ, जो पहनना चाहती हूँ, जो मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, मैं जो भी करना चाहती हूँ मतलब लाइफ में, वो मैं कर पाती हूँ. You will feel that freedom for sure. And with the Mars energy, Mars वही एथलेटिसिज्म है, फिटनेस है, कुछ कर दिखाने की ताकत मार्स है. तो फिटनेस भी है, एथलेटिसिज्म भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बॉडी में दम भी है, स्ट्रेंथ भी है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, चाहे वो मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ है, तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ भी फील करते हैं. मनी भी हमें स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है. मनी से भी पावर आता है, तो वो पावर, फाइनेंशियल पावर भी आप फील कर रहे हैं. और जैसा मैंने बताया, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन भी है जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, एंड दे ऑल्सो सम हाउ हेल्प यू आउट, यू हेल्प देम आउट, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव the spacious mind and soul card. Spacious mind and soul here shows me that you are someone जो अपना बेस्ट कर रहा है लाइफ में 3 years from now, जिसके पास स्पेस है लाइफ में. ऐसा नहीं है कि भाई इतने घंटे तो मैंने काम को देने, इतने घंटे मैंने अपने फिजिकल बॉडी को देने, इतने घंटे जो है मैंने सोना है, इतने घंटे जो है मेरे को ये वाला है, इस जगह पर जाना है. आपने अपने आप को एक रूटीन में नहीं बांधा हुआ. रूटीन्स आर बोरिंग. रूटीन्स make us make our creativity go away. Creative people are actually crazy people, and you are living that kind of crazy life. तो आपने अपने आप को किन्हीं चीज़ों से एज सच बांधा नहीं हुआ. आप बहुत क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिव भी इसीलिए क्योंकि रूटीन्स में नहीं है. रूटीन इज़ अ गुड थिंग, नो डाउट, बट फॉर अ क्रिएटिव पर्सन इट्स अ जेल, एंड फॉर यू इट्स अ जेल. पाइल नंबर 1. तो व्हाट आई सी इज यू आर फीलिंग दैट फ्रीडम. यू आर लाइक कि मैं ज़िंदगी ने मुझे अपना लिया, मैंने ज़िंदगी को अपना लिया, और आप ज़िंदगी सच में जी रहे हैं. यू आर ब्रीदिंग, यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ. और ये बेस्ट लाइफ आपने इन नेक्स्ट 3 years में अपने लिए क्रिएट करी है. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर बेस्ट लाइफ, पाइल 1, एंड यू डिज़र्व सक्सेस, एंड यू आर गेटिंग सक्सेस, क्योंकि एफर्ट भी आपके दिख रहे हैं. ऑल राइट, सो यहाँ पर व्हाट आई सी, मार्स, सैटर्न या मून में से आत्मा कारक प्लैनेट होगा कोई. इन तीनों में से कोई एक आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. और आई सी एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस. इनमें आपके प्लांट्स प्लेस होंगे. एक्वेरियस इज अ वेरी एसेंट्रिक साइन. इट्स अ वियर्ड साइन, इट्स एन एसेंट्रिक साइन, इट्स अ साइन ऑफ इनोवेशन. तो आपका लगन लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, आत्माकारक प्लानट या अमत्य कारक प्लानट जो कि करियर सिग्निफिकेटर प्लानट होता है, वो एक्वेरियस में हो सकता है, या आप एक्वेरियस राइजिंग हो. तो एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाकन, पूर्वा भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एंड आई ऑल्सो सी दैट यू हैव कलर्ड योर हेयर, यू हैव बॉट लॉट ऑफ ज्वेलरी, you love to have silent luxury in the sense कि आप लोगो वाले कपड़े नहीं पहनते, पर ब्रांडेड ही कपड़े पहनते हो. लोगोज ऐसा एकदम सामने सामने ऐसे फ्लैशी लोगोज ऐसे नहीं दिखते हैं. साइलेंट लग्जरी को आप इंजॉय करते हो. ऑल राइट, एंड यू हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी, you will have lot of jewelry. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below.
And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Earth Horse. So let's get started with your reading, or you pick this pile because आपका birthday 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Who you have become 3 years from now, pile number 2. आपकी future self आपको कैसे describe कर रही है, क्या आप बन चुके हैं 3 years from now, pile number 2. Oh my god, this card is from some other deck. Okay. We have Rescuer. Okay, all right. You're a natural philanthropist, pile number 2. You guys are the people who want to support, want to provide, want to strengthen others who are in crisis, who want love. You give them love without expecting anything in return. You're like this, you're doing such works. And we have companion card. So the companion card definitely, obviously here shows me that 3 years from now, you have a companion in your life. यू हैव समवन जो आपसे बहुत लॉयल है, आप उनसे बहुत लॉयल हैं, आप बहुत कमिटेड हैं उनसे, वो आपसे बहुत कमिटेड हैं, और दोनों जो है सेल्फलेस वे में सेल्फलेस एक्ट्स करते हैं. दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, अपने आप को भुलाकर. एक जेंटलमैन वही होता है जिसका सन लिब्रा का हो. सच पीपल आर जेंटलमैनली पीपल. Such people actually forget about their own identity and start to serve others. अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा. एक है कोई एक इंडिविजुअल जो एक हम कह सकते हैं एम्बेसडर है इंडियन गवर्नमेंट में. वो काम करते हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ जाता है. अब उनका वो मेरे को प्रोफेशन तो याद नहीं, बट ही इज़ ऑन अ सीनियर लेवल एंड ही विजिट डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पर वो इंडिया को जो है इंडिया के बारे में बताते हैं. मे बी दे वर्क इन एम्बेसी. बेसिकली एक अच्छी पोजिशन पर हैं. बट व्हेन ही कम्स बैक होम, ही इज़ नॉट द एम्बेसडर. ही इज सिंपली ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ आस्क्स हिम टू चॉप अनियंस एंड ही फॉरगेट्स हिज पोजिशन कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ. ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड स्टार्ट टू चॉप दोज अनियंस. he does this. So what is this? This is जो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी भूल के काम, चाहे वो जो भी है, छोटा है बड़ा whatever, वो काम करना शुरू कर दे क्योंकि उसके कंपेनियन ने कहा है. ही इज़ वेरी कमिटेड टू हिज वाइफ, हिज कंपेनियन ऑफ लाइफ, फॉर लाइफ, राइट. तो ये तभी आता है जब एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को भूलकर दूसरे से बहुत डेवोटेड हो. तो दूसरा उससे कुछ भी करा ले, उसका पार्टनर उससे कुछ भी कराएगा, वो कर लेगा, वो ना नुकुर नहीं करेगा, है ना. तो ये चीज़, इतना सेल्फलेस होना या इतना अपनी आइडेंटिटी को भूलकर काम करना, ये सन इन लिब्रा वाला पर्सन कर सकता है. Sun in Libra. And yes, Sun in Libra people are the people who works in government. क्योंकि अगर आप अकड़ गए, आप कहते हो मैं तो भाई इतना इंटेलिजेंट इंसान हूँ, इतनी मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मैं तुम्हारे अंडर नहीं काम करूँगा, या जो तुम मुझसे ऐसा काम करा रहे हो, मेरे से ऐसा बिहेवियर रख रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता, वो मुझसे तुम स्टेप्स कराओगे तो मैं नहीं करूँगा. ये हो जाता है अकड़ना. बट अकड़ कर तो काम नहीं चल सकता, right? So people who actually work in government needs to have a weak sun in the chart. Birth chart में weak हो, D10 या D9 में वो strength पकड़े, तब एक इंडिविजुअल जो है गवर्नमेंट में काम करता है. क्योंकि जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं या जो बड़ी पोजिशंस पर ऑफिसर्स, बड़ी पोजिशन पर जो लोग हैं, दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. पॉलिटिशियन का प्रेशर है, जनता का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर है, कई प्रेशर्स हैं.
उन सभी प्रेशर्स के बावजूद आप कुछ अच्छा कर जाओ, है ना, तो आप महान बनते हो, ये तब आप रिस्पेक्ट के काबिल समहाउ बनते हो जनता के सामने. सो ये जो है ये कंडीशन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 2, आपके यू आर समवन जो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भूलकर दूसरों के लिए चीज़ें करने को राज़ी हो जाता है. किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे आप. आपको जो काम सामने मिलेगा आप वो करेंगे. आप एक बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल्ड इंडिविजुअल है. अगेन सन 7th हाउस का हो सकता है, सन लिब्रा का हो सकता है, सन 8th हाउस में बैठा हो. दिस कैन इवन हैपन. यहाँ तो कई सारे कार्ड निकल गए. डिटेक्टिव कार्ड मैंने पढ़ लिए तो हम इसको ज़रूर लेंगे. सो अगेन सन लिब्रा का, सन 8th हाउस का, सन 7th हाउस में, सन 8th हाउस में, सन 2nd हाउस में या सन टॉरस में. जब सन टॉरस में होता है या सन 2nd हाउस में होता है, स्पेशली वीनस से 2nd है, मार्स से 2nd है, जुपिटर से 2nd है, असेंडेंट से 2nd अगर सन बैठा है, ऐसे इंडिविजुअल की घर में नहीं चलती. ऐसे इंडिविजुअल के फादर की भी घर में नहीं चलती. ऐसे इंडिविजुअल को अपने पार्टनर से झुक कर रहना पड़ेगा घर में, उसकी खुद की घर में नहीं चलेगी. क्योंकि अब सन जो है अथॉरिटी, द किंग, अब वो वीनस के साइन में आ गया, वीनस के हाउस में आ गया, वीनस के डोमेन में आ गया. तो वाइफ की चलेगी, घर वालों की चलेगी, उस राजा की नहीं चलेगी. राजा होगा अपने महल में, अपने घर में, कोई राजा नहीं है वो. सो ऐसे सन इन टॉरस, सन 2nd हाउस में वीक हो जाता है. तो ऐसी पोजीशन आपकी होगी विच कैन अगेन एक्चुअली गिव यू अ गवर्नमेंट जॉब. एंड वी हैव डिटेक्टिव कार्ड. इट सेज ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिजायर टू सीक आउट द ट्रूथ. या it can happen. Pile number 2, you guys are literally detectives. You guys are literally into cyber security, in general security से related काम में, करियर में आप हों. This can happen. And definitely some of you have joined NGOs, are doing something good for others, or can be the people जो पुलिस में हों, या you guys can be the people जो कुछ रेस्क्यू से रिलेटेड काम कर रहे हैं, दूसरों को रेस्क्यू कर रहे हैं किसी तरीके से, ऐसा आप काम करते हैं. विद द कंपेनियन कार्ड आई ऑल्सो फील कि 3 years from now आप कुछ मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड काम करते हैं. मतलब दूसरे कपल्स आते हैं एंड यू डू देयर मैरिज काउंसलिंग बिकॉज दे आर हैविंग ट्रबल्स इन द मैरिज, सो यू आर डूइंग मैरिज काउंसलिंग काइंड ऑफ वर्क्स एज वेल. तो कुछ ऐसे आपके काम, आपके करियर नज़र आ रहे हैं. Then we have the mature man. So with the mature man here, I see that you are the mature man or you are the mature woman. आपने बहुत सारा जो है बहुत दुनिया देख ली है इन द नेक्स्ट 3 years, और आपके पास बहुत आपने ऑब्ज़र्व करा है लोगों को, चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करा है ध्यान से. आपको दुनिया समझ आने लग जाती है, आपको जियो पॉलिटिक्स से समझ आने लग जाती है, आपको अपने कंट्री की पॉलिटिक्स से समझ आने लग जाती है. आप बहुत ज़्यादा वाइज हो जाते हैं लाइफ में. एंड पीपल आस्क यू फॉर एडवाइस बिकॉज दे फील दैट योर एडवाइस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी वेरी वैल्यूएबल. Then we have family room. So family, again, जैसे टॉरस की हम बात कर रहे थे, सन इन टॉरस. टॉरस इज अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट कुटुंब, it's about your home. So family here definitely shows me, with the family room here, it shows me that you will be able to spend time with your family, you will have a good relationship with your family, you may even have your own home 3 years from now, जहाँ पर आप रहना शुरू करते हैं अपने परिवार के साथ या अपने loved ones के साथ. And this home is going to be very comfortable, very luxurious, very beautiful. And जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो गया. आप जिन बर्तनों में खाना खाते हो बर्तन बड़े सुंदर हैं. आप जिस कप में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हो, कप बहुत सुंदर है. आप जिस काउच पर बैठते हो वो काउच बहुत कंफर्टेबल और सुंदर है. आपके घर में झूमर लगा है, आपके घर में सुंदर सुंदर चीज़ें हैं. विनिशियन लाइफ आप जीते हैं. विनिशियन यानी कि लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप जीते हैं. And your family is very proud of you. You're someone who provides a very good life, a luxurious life, a very comfortable life to your parents, to your loved ones, to your family. All right.
एंड देन यू हैव ऑक्यूपेशन, आप काम में बहुत व्यस्त और मस्त रहते हैं. अगेन मेनी ऑफ यू विल हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या सैटर्न 9th हाउस में बैठा हो, दिस कैन हैपन. या जुपिटर के आगे वाले घर में सैटर्न हो या जुपिटर के पीछे वाले घर में सैटर्न हो. इसको हम धर्मादि कर्मादि योग बोलते हैं. धर्मादि कर्मादि योग यानी कि एक इंडिविजुअल जो है मरते दम तक काम करेगा. ऐसा नहीं है कि उसको मजबूरी है, भाई पैसे कमाने हैं मजबूरी है, नहीं. इट जस्ट कि उनका काम करने का मन करता है. जैसे अमिताभ बच्चन, इवन दो ही इज इन ओल्ड एज, still he works because he wants to work. तो ये वांट, ये डिज़ायर होगी कि मैं तो थ्रू आउट लाइफ ही काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा घर में वेले बैठकर गुजारा नहीं है. यू गोना बी लाइक दिस एंड यू आर. अगेन जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन भी एक पर्सन को काफ़ी वाइज बना देता है, एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट बना देता है. लोगों के बीच आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है और वही एक गुरु मेंटोर आप बन जाते हैं. जो भी आप काम मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अब बहुत इवन इन जनरल इन लाइफ जो भी आप काम करेंगे आने वाले समय में बड़ा परफेक्शन के साथ करेंगे. एंड यू गाइज आर द पीपल जो नॉक्टर्नल हैं. अगेन जब सन वीक होता है चार्ट में, मैंने कहा कि सन लिब्रा में डेबिलिटेटेड होता है, 7th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है, या सन 7th हाउस 8th हाउस या 2nd हाउस में भी है, तो ये, या इवन सन 12th हाउस में है, 11th हाउस में है, या सन लीब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस या एक्वेरियस में, ये सन की वीक पोजिशंस हैं. हाँ, जुपिटर अगर यहाँ पर एस्पेक्ट कर दे या कंजंक्ट हो जाए सन से तो ये सन पावरफुल भी बन जाता है. पर अगर जुपिटर नहीं एस्पेक्ट करो और सन इन कंडीशंस में है, इन साइंस या इन हाउसेस में है, तो ये शो करता है एक इंडिविजुअल का जो रिलेशन है अपने फादर के साथ अच्छा नहीं है, या फिर उसके फादर हमेशा बीमार रहते हैं, या फादर इज़ नो मोर. एंड इट शोज़ कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति नॉक्टर्नल है, क्योंकि सूर्य तो मतलब सूरज के उगने से दिन होता है, राइट. तो जो दिन में एनर्जेटिक होता है उसका सन अच्छा होता है. जो रात को एनर्जेटिक है उसका सैटर्न स्ट्रांग होता है. सैटर्न रात का प्लैनेट है, शाम से सैटर्न उगना शुरू होता है, वेयर सन दिन का प्लैनेट है. तो विद दिस कंडीशन आई डू सी कि सैटर्न कहीं ना कहीं, सैटर्न इज योर वर्क एथिक. आपका वर्क एथिक कितना स्ट्रांग है, सीन फ्रॉम सैटर्न. जिनकी लेग्स लॉन्ग होते हैं, अगेन अमिताभ बच्चन्स लेग्स आर क्वाइट लॉन्ग, मतलब लेग्स ज़्यादा लॉन्ग है, टॉर्सो इतना नहीं, लेग्स आर मोर लॉन्ग, राइट. सो जिनकी लेग्स लंबी है, दे हैव मोर वर्क एथिक. दे आर द पीपल जिनको समहाउ करियर में नेचुरल सक्सेस भी मिलती है, ज़्यादा वो पैसे भी कमाते हैं. देयर इज़ अ स्टडी एज वेल, स्टेटिस्टिक ये कहते हैं, जस्ट नॉट एस्ट्रोलॉजी बट स्टेटिस्टिक ऑल्सो सेज दिस, कि जो लोग लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, वो समहाउ ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू द पीपल हु हैव शॉर्ट हाइट. मतलब ऐसा डेटा कहता है. हर ऑब्वियसली जो हाइट में कम लोग हैं वो पैसा नहीं कमाते या बहुत कम कमाते हैं सारे ही, ऐसा नहीं है. उसमें भी आपको कई बिलियनियर्स मिल जाएंगे, ट्रिलियनियर्स भी मिल जाएंगे. बट एक जो डेटा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लंबे लोग ज़्यादा समहाउ पैसा कमाते हैं, उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाते हैं, उनको बेटर पेचेक मिल जाता है, वो ज़्यादा लुक्स में अच्छा लगते हैं समहाउ. ये ऐसा डेटा कहता है. एंड दिस इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो सेज कि सैटर्न वर्क एथिक है और सैटर्न पैर है, सैटर्न करियर है. तभी कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यानी अपना करियर सेट कर लो. सैटर्न पैर है. दैट्स व्हाई वी से बाय शूज़, एक्सपेंसिव वेरी कंफर्टेबल शूज़ एवरी 6 months. यू शुड बाय. इससे आपका करियर को एक बूस्ट मिलता है. हाँ, और जो पुराने जूते उसको दे दो किसी को. अगर 3 साल से ज़्यादा पुराने अगर आपके पास जूते हैं तो वो वीक कर देते हैं आपके सैटर्न को, तो उनको दे दो किसी को या फेंक दो. नए जूते एवरी 6 months खरीदो. दिस इज अ रेमेडी फॉर सैटर्न. हाँ, अगर वर्षफल में सैटर्न 6th हाउस में बैठे है उस साल तो बिल्कुल भी आपको शूज़ नहीं खरीदने. अदरवाइज अगर आप शूज़ खरीदो तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से डील करोगे. बट हाँ, अगर वर्षफल में 6th हाउस में नहीं बैठा सैटर्न तो उस साल तो आप डेफिनेटली शूज़ खरीदो एवरी 6 months. तो विद द ऑक्यूपेशन कार्ड यू गाइज आर नॉक्टर्नल. यू गाइज आर द पीपल जिनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है. आप अगर कमिट कर जाते हैं किसी काम से तो कमिट ही कर जाते हैं, आप हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं. और आप एक बार बैठ गए ना काम करने पाइल नंबर 2 तो आप बैठ ही गए, फिर आप उठोगे नहीं काम करने से पहले, आप कंप्लीट करके ही उठोगे अपने काम को. एंड यू आर द पीपल जो बस आपका फोकस है अच्छा पाइल नंबर 2. अगर आप एक काम करने लग जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीत जाता है आपको नहीं पता लगेगा. एंड यू विल बी समवन हु लव योर वर्क.
You love your work, you love to serve people, you love to serve your nation. You're going to be the people जो अपने काम से बहुत प्यार करता है. इस वजह से काम में जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत जैसी फील नहीं होगी. ग्रेट. समथिंग मोर. वी हैव म्यूटेबल. इट्स इज रिफाइन. अभी हम यही बात कर रहे थे, जो काम आप करते हैं बहुत परफेक्ट करते हैं, बहुत रिफाइंड काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. काम सारे करते हैं पर कोई बंदर वाली भाग दौड़ कर रहा होता है जिसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता. और कुछ लोग थोड़ा सा भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा वो काम कंप्लीट होगा. तो क्वालिटी है आपके काम की पाइल नंबर 2. चाहे काम कम करते हो पर जो क्वालिटी का काम है वो आप ही करते हो. दैट्स व्हाई पीपल विल लव टू कनेक्ट विद यू, वुड वांट टू गिव यू वर्क एज हाउ यू अर्न मनी. देन वी हैव लीब्रा. अभी हम सन इन लीब्रा की बात कर रहे थे जहाँ पर सन डेबिलिटेटेड है. तो लीब्रा कार्ड यहाँ आ गया. लीब्रा इज़ अबाउट अदर पीपल. आपका असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में हो सकता है, आपका असेंडेंट लॉर्ड लीब्रा में हो सकता है. पाइल नंबर 2. आपके लीब्रा साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. पाइल नंबर 2 विच शोज कि आप ना पीपल्स पर्सन हो. यू आर एक्चुअली बॉर्न फॉर अदर्स, यू आर एक्चुअली बॉर्न फॉर अदर पीपल. यू आर अ पीपल्स पर्सन. आप नेचुरली लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, लोग नेचुरली आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और आप सर्व करने आए हो दूसरों को. ऑलराइट, सर्विस प्रोवाइड करने आए हो दूसरों को, या ऐसा भी कोई काम कर सकते हो. जैसे सम ऑफ यू कैन बी इवन HR. सम ऑफ यू क्योंकि HR में भी आप जो है भाई एम्प्लॉयज़ का मेंटल हेल्थ ना ख़राब हो जाए तो हम जी इनको कहीं घुमाने फिराने लेकर जा रहे हैं, कोई इवेंट इनके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, ये काम करते हैं. या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना. तो कुछ ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर आप लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए आप एक्ट कर रहे हैं. या आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, कोई इवेंट कराते हैं, इवेंट मैनेजर हैं. या आप मैरिज मतलब जैसे शादी ब्याह है तो उसके वेन्यूज़ आप बुक करते हैं, कराते हैं. जहाँ गैदरिंग करानी हो वहाँ आप गैदरिंग कराते हैं ना. ऐसे भी आप कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं 3 years फ्रॉम नाउ. पाइल नंबर 2 ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कैरियर. लेट्स स्टार्ट विद स्पेसिफिक कार्ड्स है. और पहले तो करियर के बारे में ही हम कार्ड पुल करेंगे. पाइल नंबर 2 का करियर कैसा है 3 years फ्रॉम नाउ. ओके, वी हैव 6 of cups. And one more thing, Libra is about companionship, it's about marriage, so it can even happen 3 years from now you are already married, or 3 years from now you are in a very committed serious relationship. Both of you are serious for each other, both of you are very committed to each other, both want to stay together with each other for a lifetime. ठीक है, ये यहाँ दिखता है. 6 of cups है तो it shows with the it came for the career. You're very satisfied with your career, your loved ones, your family is very satisfied with you. All right, there are definitely going to be some people who are going to also be jealous of you. There are going to be people जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन है मैं कहूँगी. अगर कोई आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा है ना, यानी कि आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं हैं. पर अगर आपके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बात हो रही है ना, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग वेरी राइट, यू आर डूइंग समथिंग जो इम्पैक्टफुल है. तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपके पीठ पीछे अच्छी बुरी जो भी है बातें कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. और क्योंकि ये करियर के लिए कार्ड है, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर. कई आपके लिए बहुत खुश और कई जल भुन के राख हो चुके हैं. देन वी हैव जस्टिस, ये भी करियर के लिए आया है. जस्टिस यहाँ ये शो करता है, येस आई डू फील पाइल नंबर 2 यू गाइज गिव लॉट ऑफ एग्जाम्स, यू गाइज रोट लॉट ऑफ एग्जाम्स but fail होते गए. But what I see is in the next 3 years you will clear some exams and will get a position in government. And for some of you will clear some exams or interviews and you will get a position in some private company, corporation. और वहाँ पर आप बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, गवर्नमेंट में आप बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं. लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड आप काम करते हैं, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू अदर पीपल. आई ऑल्सो फील भरनी का भी एनर्जी और लीब्रा का भी अगेन एनर्जी है, क्योंकि लीब्रा का जो साइन सिंबल होता है वो इन्हीं का ही होता है, स्केल्स का होता है. स्केल्स आर ऑलवेज इम्बैलेंस, इस वजह से लीब्रा पीपल आर ऑलवेज इम्बैलेंस्ड. हमेशा अपनी लाइफ को बैलेंस करते चले जाते हैं, होती नहीं है उनकी लाइफ बैलेंस. पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हमेशा बिखरा हुआ सा रहता है, तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ्स. सो अगेन यू मे हैव योर आत्मा कारक असेंडेंट लॉर्ड इन लीब्रा, तो ये आपकी लाइफ है. एंड जस्टिस हेयर शोज मी दैट यप
यू आर प्रोवाइडिंग जस्टिस टू अदर पीपल इन योर करियर, एंड आपको अपने करियर में जस्टिस भी मिल रहे हैं, यानी आप जो हार्डवर्क करते आए हैं पास्ट में, कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो वेस्ट नहीं जाता है, आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलता है, नेक्स्ट 3 years में मिलता है, जिससे आपका करियर बनता है. एंड वी हैव मून. मून केम फॉर योर फाइनेंस. तो मून यहाँ पर ये शो करता है दैट इट कैन हैपन, मेनी ऑफ यू में इन्वेस्ट इन मेटल, स्पेशली इन सिल्वर. इस साल भी सिल्वर का टारगेट है वैसे 2026 में कि 4 लाख उसने टच करना है, क्रॉस करना है, करेगा सिल्वर अगेन 2026 में करेगा. तो तब भी आप सेल कर सकते हैं अगर आपने ख़रीदा हुआ है सिल्वर. और 2030 तक सिल्वर का टारगेट 8 लाख है. तो लॉन्ग टर्म भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो गेन है, 2030 में 8 लाख टच या क्रॉस करेगा सिल्वर. और जो गोल्ड है वो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा बढ़ेगा. इस साल तो गोल्ड का टारगेट 2 लाख क्रॉस करना है दिसंबर तक, या 2027 की शुरुआत में 2 लाख उसने क्रॉस करना है. गोल्ड देखिए करेक्शन आती है जाती है, मतलब 15% 20% की करेक्शन आती है, बट उसके बाद वो फिर से उसी प्राइस पॉइंट पर आ जाता है और ग्रो ही करता है. तो अगर आप सोचते हैं कि गोल्ड सिल्वर बहुत कम हो जाएगा प्राइस, ऐसा नहीं है. 15-20% का आता है एक बार करेक्शन, फिर अप जाता है. सो व्हाट आई सी विद द मून एनर्जी इज़ कि आप सही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. ऐसा कोई मतलब आप रिस्क मुझे नहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स में लेते हुए नज़र आ रहे. कई बार होता है ना कि हम चलो जी इस जगह पर प्लॉट ले लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वाला हाईवे निकलेगा, या ये वाला हाईवे नहीं सॉरी यहाँ से ये वाला रोड कनेक्ट होगा, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर यहाँ के प्राइसेस बढ़ेंगे, वो ये थोड़ा सा सस्ता लैंड मिल जाता है ऐसे केसेस में. बट फिर बस आप भूल जाओ उस पैसे को जो आपने वहाँ लगा दिया 5 से 10 साल, और आपको तकना पड़ता है कि सरकार कब कनेक्टिविटी करेगी एंड ऑल. तो वहाँ से वो थोड़ा एक फिर भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है. मेरे जहाँ पता ही है कि भाई इसने ग्रो करना है, जहाँ पर मतलब पता ही है कि दिस हैज़ टू ग्रो, तो वहीं पर ही अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, निश्चिंत है अपने पैसों को लेकर. ऐसी मून है तो मून रिप्रेजेंट सिल्वर, जुपिटर इज़ गोल्ड. तो आप वही मेटल्स में इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और अच्छे गेन्स भी आपको इसमें मिलते हैं. बहुत निश्चिंत है अपने फाइनेंसेस को लेकर, बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हैं. देन वी हैव 3 कार्ड ये निकल आए हैं. देन वी हैव दी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Cups एंड 2 of Wands. ये कार्ड्स आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आए हैं. तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इन द नेक्स्ट 3 years कोई आपकी ज़िंदगी का दरवाज़ा खटखटाता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू they really like you, someone really likes you, and they are the one who is approaching you. You are not approaching your life partner. सामने से कोई person आपको approach करता है, they are very much interested in you. And I just have this feeling with the 3 of Cups energy that you were friends with them in your school, in your college time. Maybe you were friends with them, or maybe they were your classmates, someone you know, all right. Maybe आप अपने previous job में ये person आपके साथ काम करते थे and you used to talk to them. Someone you know again is coming back in your life in the next 3 years itself. वैसे again swords की energy है तो quick energy है, तो it can even happen within the next 3 months. You actually meet this person. This person is going to approach you, may say hi, hello in text to you. All right, and then you start to talk to each other and you communicate so much. रातों में भी आप बहुत बातें करते हैं इस इंडिविजुअल के साथ, ये इंडिविजुअल आपसे बहुत बातें करते हैं. बातें भी लंबी तभी चल सकते हैं जब आप दोनों ही बात कर रहे हो. एक ही इंडिविजुअल अगर बात करे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पर बातचीत बंद ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी. तो 2 लोगों का होना, इंटेंशन होना कि वी लाइक ईच अदर, है ना, तभी बातें हो सकती है इतनी तो. क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो बहुत बातूनी इंडिविजुअल आपके लाइफ में आ रहा है, और आप भी बहुत बातूनी बनते हुए नज़र आ रहे हैं. They bring a very different personality in you actually, and you love the personality which comes out of you when you are with them. You love
योर सेल्फ मोर व्हेन यू आर विद देम. तो आपकी पर्सनैलिटी उभर के आती है इस पर्सन के थ्रू. जो पर्सन आप बन जाते हैं इस पर्सन के साथ, वो आपको बहुत गुड फील कराता है. So that's there. We have Three of Cups here. Three of Cups here shows me that again you become very social in your personal life. You have some friends around you who supports you, who loves you unconditionally. All right, and they're genuine supporters. If you feel Punarvasu nakshatra can also be present. Punarvasu is a nakshatra related to Shri Ram. तो श्री राम जी के जैसे दो मेन फ्रेंड्स, एक तो हनुमान जी और एक उनके खुद के ब्रदर लक्ष्मण जी. तो these two were the main friends of Shri Ram. उसी तरह आपके भी बहुत दो जेन्युइन फ्रेंड ज़रूर होंगे लाइफ में हु विल बी देयर फॉर यू, एंड ऑलरेडी मे बी आपकी लाइफ में आ चुके हैं और उनके साथ संबंध बहुत अच्छा होने वाला है या आने वाले विद इन 3 months में. सो दैट्स देयर. एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. आई सी दैट यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट इन योर पर्सनल लाइफ. That is also something which we see. 3 years from now you're traveling the world and you have a plan for life, that I want to do this, I don't want to do that. You have opinions, you have plans, you have clarity over what you want to achieve in life, what kind of life you want to live, what are your likes and dislikes. आप काफ़ी opinionated बनते हैं और आप बहुत अपने आप को जान लेते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो आप बहुत मैच्योर भी नज़र आ रहे हैं. समथिंग अबाउट योर फिजिकल मेंटल हेल्थ. वी हैव द जजमेंट कार्ड. जजमेंट हेयर शोज दैट यू लिव अ वेरी फ्री लाइफ. फ्रीडम वाली लाइफ आप इंजॉय करते हैं. ऑल राइट, यू डू थिंग्स विच मेक्स यू फील हैप्पी. यू डोंट डू थिंग्स विच मेक सोसाइटी हैप्पी. यू डू थिंग्स विच मेक्स यू फील हैप्पी. एंड क्योंकि आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको खुशी देती है, तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. I see that you are physically, mentally, emotionally very healed, very happy. You are happy-go-lucky kind of person, chirpy. So that's great. Pile number 2. You have this kind of nature 3 years from now. Last but not the least, we have the commitment card. कंपेनियन का कार्ड आ गया, लिब्रा साइन आ गया, कमिटमेंट भी आ गया भाई. यस, 3 years from now already you can be married, or you will get married 3 years from now. In the next 3 years you find someone for yourself, or I should say जो आपके लाइफ पार्टनर है वो आपको ढूंढ लेते हैं, and you have a very good relationship with them, and when they come in your life you will know it even on the first date, or they may even know on the first date that you are the one for them and they are the one for you. तो एक बहुत deep commitment मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप दोनों के बीच. So if you were that person who said that I'm never going to marry, नहीं, never say never. You're actually going to marry. You're actually going to be having a very good relationship with a soul, with someone जो बहुत ब्यूटीफुल है. वो रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुकून वाला है. उस रिलेशनशिप में कोई जजमेंट नहीं है. एक तरीके से ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड बनता है, और बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद ये पर्सन आपसे कमिट करता है, आप इससे कमिट करते हो. इवेंचुअली यू गाइज गेट मैरिड एंड वी हैव सिंप्लिसिटी. तो सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी भी आप लोगों में है. पाइल नंबर 2. यू गाइज आर द पीपल जो बहुत सिंपल हैं, बहुत आई वुड से बनावटी दिखावटी इंडिविजुअल नहीं है. यू गाइज आर द पीपल हु वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ. या जो आप ज़बान पर हैं वही आप दिल में भी हैं. तो आप बड़े जो है सिंपल और सोबर इंसान हैं. ऑल राइट, यू आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनी बडी. यू हैव रियलाइज्ड दिस, एंड यू आर ऑल्सो समवन जो अगेन वही बनावटी दिखावटी नहीं है, जिसके कारण येस दे आर गोना बी पीपल जो आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड दे आर गोना बी पीपल जो आपको बहुत पसंद करेंगे. जो हर किसी का दोस्त है ना, वो किसी का भी सगा नहीं है, वो किसी का भी दोस्त नहीं है. जिसको सारी दुनिया पसंद करती है ना, प्रॉब्लम है उस व्यक्ति में बहुत बड़ी वाली. वो या तो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा इवेंचुअली, या वो खुद कुछ गड़बड़ कर रहा है. क्योंकि हर किसी को एक व्यक्ति हर किसी का पसंदीदा नहीं हो सकता. उसको डुअल गेम तो खेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक लेफ्टिस्ट है, एक क्या कहें लेफ्टिस्ट कहते हैं, या मतलब ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं. आप हर ग्रुप के फेवरेट नहीं हो सकते. अगर आप हैं तो आपको डबल गेम खेलना पड़ेगा. फिर वो आप दोस्ती नहीं कर रहे, फिर आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं. राइट, सो
what I see is कि even with the Six of Cups card हम यही बात कर रहे थे कि there are gonna be some people जो आपके behind your back will say bad things about you. और मैंने कहा ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं. that shows that you are making an impact, you are doing something great. And then last but not the least we have the happiness card. I mean क्या कहें, पाइल नंबर 2 आप तो वंडरफुल लाइफ जी रहे हैं. वंडरफुल लाइफ. आई वांट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ. यू आर लिविंग अ वेरी वंडरफुल लाइफ. एक ऐसा लाइफ आप जी रहे हैं जहाँ आप अपने लिए जी रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए. आप अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करते हैं. आप वैसे लाइफ जीते जैसे आप हमेशा से जीना चाहते थे. फ्रीडम आप इंजॉय कर रहे हैं. एंड विद दिस हिमालयस कार्ड आई ऑल्सो फील कि एक सुकून है, एक कूलनेस है, एक सुकून है. रैट रेस में नहीं फंसे हुए. So this is how your life is going to turn out. All right, pile number 2. So yeah, that was it. Astrologically देखे तो हाँ भाई, Libra, Taurus, Scorpio, Aquarius और Pisces में planets placed होंगे. तो Taurus में वेव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर वी हैव लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1 D12 D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोनो कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो याद वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकली जैसे सन हो गया, वीनस एंड इवन सैटर्न, इनमें से एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट व्हिच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्री. सो या, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do esoteric reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the metal rat. It says be aware of projection, or you picked this pile because आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हु यू हैव बिकम 3 years फ्रॉम नाउ. पाइल नंबर 3. आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कैसे डिस्क्राइब करती है, आपकी लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ. ओके, we have slave. Okay. Surrendering your power of choice to the divine with complete trust. Okay. You know what, pile number 3, I just got this message that you guys are right now, maybe your guys are corporate slaves, are feeling like we are really in slavery. I feel bad for you guys, but guess what, 3 years from now things can change for good. Or in the next 3 years, things will change for good. We have student card as well. So next 3 years are also about student life. And you doing good in student life. Then we have the Prince card. What a perfect card it is. Okay. तीनों ही कार्ड कितने डिफरेंट हैं, अपने आप में ही यूनिक है इस मेटल रैट की तरह. So what feeling I get, what message I get from here is that you guys are going to be the people who's going to will have a breakthrough. You guys are the people who will make others realize that maybe जो हमने स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें समझी थी, पढ़ी थी, वैसा नहीं है. या जो हमने पढ़ाई करी, we were meant to become a slave through that, education. When I was a child, when I was in school, I used to feel like कि जो मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ वो मेरे काम नहीं आने वाली है. I always used to feel this way. तो मैं कभी पढ़ाई पर 9th क्लास तक तो मैंने 10th तक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया पढ़ाई में.
because I always felt this knowledge is, or this information is not going to become my knowledge, it's not going to help me out anywhere in my life. Sin cos theta मेरे अभी तक काम नहीं आया है. And again the thing I felt was कि ये जो information हमें दे रहे हैं, ये जो system हमें पढ़ा रहा है, ये system slave बना रहा है somehow. क्योंकि जो मेरी real ability है उसको ये सराहने की बजाय उसको, मेरी रियल एबिलिटी को ये नॉनसेंस मानता है ये सिस्टम. तो ये मेरे को बहुत एक ड्रॉबैक लगता था अपने स्कूल टाइम में. नाउ थिंग्स डेफिनेटली आर चेंजिंग थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कि हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बदल रहा है, विच इज़ गुड. बिकॉज पहले का एजुकेशन सिस्टम वॉज मेंट टू मेक एवरीबडी अ स्लेव. अगर आप रूल्स फॉलो करते हो, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, एंड इफ यू आर स्कोरिंग वेल, यू आर अ ग्रेट पर्सन, गुड पर्सन, यू विल बिकम द मॉनिटर, यू विल बी आपको गुड चीज़ें कही जाएगी, आपकी तारीफ होगी मतलब. पर जो बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता था उसको ऐसा देखते थे, ऐसी नज़र से देखते थे कि तुम जिंदा ही क्यों हो भाई तुम्हें तो आज मर जाना चाहिए. तो नज़रों का भी मतलब फ़र्क होता है. बच्चा पहचान जाता है कि क्या मेरे को किस नज़र से देख रहा है ये सामने वाला व्यक्ति, ये टीचर मुझे किस नज़र से देख रहा है. आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम, मैं एक ही बार अपनी स्कूल लाइफ में डायरी ले जाना भूली थी जिसके अंदर हम अपना नोट डाउन करते हैं ना कि क्या क्या होमवर्क मिला. एक बार सिर्फ भूली हूँ अपनी लाइफ में, और उसी दिन मेरी टीचर मेरे को कहते कि मैं तुम्हें खिड़की, बुद्धू लड़की, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी. आई वॉज शॉक्ड टू माई कोर दैट नाउ आई लाफ अबाउट इट, बट like what? I bought everything, I just forgot one thing, and my teacher want to like throw me out of the window. I mean, and I was in a good school, in a private school, all right, good. I don't want to say the name of the school, but it was a good school. So such things happen. तो वही है कि with the slave energy, with the student energy, and with the metal rat energy, जैसे आप भी अपने आप को ना ऐसे शीशे में देखते हो, पाइल नंबर 3, आप कहते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं ऐसा हूँ. आप अपने आप से सवाल करते हैं, आप भगवान से सवाल करते हैं, क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मैं वैसा नहीं जैसे दूसरे हैं जिनको तारीफ़ मिल रही है. ना यूज़ टू फील लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो नॉट गुड लाइक यू, पाइल नंबर 3. तो मेरे भी एक्सपीरियंस में ऐसा ही हुआ कि आई यूज़ टू फील लाइक कि मैं जैसे गाना गाने में बहुत अच्छी हूँ, सिंगिंग में अच्छी हूँ मैं. तो मैंने अगेन क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत में अपना एजुकेशन भी लिया है, राग जिसमें हमें पढ़ाए जाते हैं, हम गाते हैं ना. तो संगीत में हमेशा से अच्छी थी मैं शुरू से. और संगीत वो कला है जो सीखने से नहीं आ सकती. डांस आप फिर भी सीख सकते हैं, पर गाना आप सीख नहीं सकते, वो नेचुरल होता है. कईयों के गले में नेचुरली मुर्कियाँ होती है. संगीत एक व्यक्ति सीख कर ही आता है पास्ट लाइफ से, वो आज नहीं सीख सकता है, नेचुरल नहीं होगा. वो आर्टिस्ट पैदा ही आर्टिस्ट होता है. तो आई यूज्ड टू फील लाइक यार काश ना मैं सिंगिंग में ना अच्छी होकर मैं जो हूँ पढ़ाई में अच्छी होती तो कितना बढ़िया होता. आई यूज्ड टू फील दिस वे. एंड नाउ बिकॉज नाउ आई एम अ ग्रोन अप नाउ, लाइक एंड नाउ आई फील कि नहीं अच्छा ही हुआ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, या मैंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी. अच्छा ही हुआ जो हुआ, क्योंकि गाना जो है, संगीत जो है, मुझे मेरे डार्केस्ट टाइम से भी बाहर निकाल लेता है. मेरा जब हर किसी का ऐसा होता है ना, समय की मन नहीं लग रहा है, मूड ख़राब है, तो मैं अपना कैरियोके लगा कर गाती हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि ये कितनी सुंदर कला है, कितनी खूबसूरत कला है. और कभी मैं सोचती थी कि काश मैं इस कला को ही ट्रेड कर लूँ सो दैट मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँ. तो नहीं, जो मतलब होता है अच्छे के लिए होता है, एंड यू लेटर रियलाइज द वैल्यू. तो आप भी कहीं ना कहीं फाइल नंबर 3 ऐसे अपने आप को शीशे में देखकर क्वेश्चन करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना. स्लेव्स की रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, जो हाँ जी करता है, जो जी हजूरी करता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, या उसको सोसाइटी अच्छा मानती है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ओबीडियंट सन, बड़ी वैल्यू है दुनिया में, बहुत वैल्यू है. पर वो समय कुछ और था. आज का समय कलयुग है. आज अगर आप हर बात अपने माँ बाप की मानोगे तो शायद वो आप
जो चाहते हैं एक पोजीशन रीच करना, शायद वो आप कर ही ना पाओ, क्योंकि आपका विजन आपके माँ बाप से विजन से आपके माँ बाप के विजन से बेटर होगा. क्यों बेटर होगा? क्योंकि यू आर द वन जो, आप अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छा भी अगर सोचते हैं ना आपके बारे में कि आप ऐसा ऐसा इस बात पर चलोगे तो इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे, बट क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस पोजीशन से, आपको पोजीशन मिल भी जाएगी ना, यू विल बी लाइक कि ठीक है पोजीशन ठीक है, बट पता नहीं मेरे को खुशी नहीं हो रही, क्योंकि वो इस वजह से खुशी नहीं हो रही बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू बी देयर. धक्के से मतलब आप उस जगह पर पहुंच गए हो धक्के से, बट आपका मन कुछ और ही है. वेरेज ये प्रिंस मुझे ये बता रहा है, इट सेज रोमांटिक चार्म एज वेल. प्रिंस जो है, प्रिंस भी एक पावरफुल पर्सन है ना. अगर आगे इस प्रिंस के अगर बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाए, किंग की डेथ हो जाए, तो प्रिंस ही आगे चल के किंग बनेगा, राइट. तो प्रिंस ऑल्सो होल्ड सम पावर. प्रिंस इज अ एनर्जी जो कि रोमांटिक एनर्जी है, जो कि कला की एनर्जी है, जो कि विनिशन एनर्जी है. तो यू गाइज आर दी आर्टिस्ट्स. और आप कहो कि मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, मैं किसी तरीके का इंजीनियर बन जाऊँ, मैं पायलट बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो आप बन भी जाते हो तो भी यू विल बी लाइक कि दिस इज नॉट द लाइफ विच आई वॉन्टेड, एंड यू विल फील लाइक अ स्लेव. बट बिकॉज स्टूडेंट लाइफ से आपको ये सिखाया गया कि बड़ों की माननी है, बड़ों का आदर सम्मान करना, जो कि कोई गलत बात नहीं है. बड़ों का आदर सम्मान करना, बच्चों से प्यार करना कोई गलत थोड़ी ना है. बट आप अगर हर बात मानते रहोगे, हाँ जी करते रहोगे, तो फिर आप तो एक तरीके से यू नो जो घोड़े होते हैं है ना, एक घोड़े की आँखों के साइड में ऐसा पट्टा सा बांध देते हैं कि वो साइड पर ना देख पाए, वो सीधा ही देख पाए. तो आप तो वो बन गए जिसको जो आपको दिखाया जा रहा है, बस आप वो करी जा रहे हैं, चली जा रहे हैं. आपका खुद का तो कोई है नहीं, मतलब दिमाग आप लगा नहीं रहे हैं. तो फिर रिजल्ट भी जो आपको मिलेगा वो उस अकॉर्डिंग मिलेगा, आपके मालिक अकॉर्डिंग मिलेगा, जो आपका मालिक चाहता था, या जो आपकी अथॉरिटी है, जो चाहे वो माँ बाप है, वो अथॉरिटी जो भी आपकी लाइफ की, वो जो चाहते थे आप उस पोजीशन पर रीच करेंगे. बट आपसे नहीं पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं. ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि आपने वो करना है जो आपको अच्छा लगे, आपने वो स्टेप उठाना है जो आपको ठीक लगे. आपको पावर अपने हाथ में उठानी है. एंड यस, you will be considered rebellious, you will be definitely. तो अब नरेंद्र मोदी भी जो है, कोई उन्हें गालियां देता है तो कोई उनको बहुत अच्छा भी कहता है ना. ही इज़ वन ऑफ द फेमस पीपल इन द होल वर्ल्ड. भगवान को भी लोग गालियां देते हैं और कई बहुत प्यार भी करते हैं. तो ऐसा होगा, आप जितना आगे जाते जाएंगे कई लोग बुरा भी बोलेंगे और कई लोग आपको बहुत अच्छा भी बोलेंगे, which is good, which is a good sign. यानी you are making a difference in society and you are doing something good. ये एक sign है उसका. So what I see is that you need to unlearn things, and you will in the next 3 years will unlearn things. आप अपने according चलोगे. आप जो है slave नहीं रहेंगे सिस्टम के, आप स्लेव नहीं रहेंगे सोसाइटी के, आप स्लेव नहीं रहेंगे अपने परिवार की एक्सपेक्टेशंस के. आप मस्त मौला होंगे, प्रिंस वाला लाइफ आप जिएंगे, मस्त मौलापन होगा. आप आर्टिस्ट पैदा हुए हैं तो आर्टिस्टिक ही रहेंगे, आर्टिस्ट वाला काम ही करेंगे. आप मन मार कर आखिर कितने दिन जो है वो काम कर लेंगे, सोचने वाली बात है. एक समय तो आएगा जब आपका अंतर्मन आपको खाने लगेगा. तो व्हाट आई सी इज कि नेक्स्ट 3 years आर गोना बी द years विच विल where you're gonna redefine yourself, where you are gonna do something जिससे आपकी पहचान बनती है, जहाँ पर आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे, नेम फेम भी मिलेगा, एक पहचान बनेगी, आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, आपकी ट्रू रियल आइडेंटिटी बनेगी. आप आर्टिस्ट हैं. 11th हाउस इज़ अबाउट एसेंट्रिसिटी. इट्स द हाउस जहाँ पर नेचुरल घोस्ट होता है एक्वेरियस का. एक्वेरियस यानी 11th साइन जो 11th हाउस को नेचुरली रूल करता है. इट्स अबाउट एसेंट्रिसिटी, इट्स अबाउट वियर्डनेस, इट्स about a tornado as well. Aquarius is a highly emotional sign and highly innovative sign as well. Alright, so what I see here for you guys is कि देखिए आप अपनी कम्युनिटी बना लेंगे,
आप अपनी कम्युनिटी बना लेंगे. इट कैन बी एन ऑनलाइन कम्युनिटी एज वेल, इट कैन बी एन ऑफलाइन कम्युनिटी एज वेल. पीपल हु लव योर वर्क, पीपल हु वुड वांट टू कनेक्ट विद यू. तो अपने आप को आप कभी अकेला मत समझिए, कभी भी अकेला मत समझिए. There are going to be people who are going to support you no matter what, and you will have your own community and will talk very freely with that community. सोच कर बात नहीं करनी पड़ेगी. कई लोग होते हैं ना जिनसे सोच कर बात करनी पड़ती, तो उनसे हम कम ही बात कर पाते हैं. और जिन लोगों से हम आराम से बात कर सकते हैं, जो मन में है वो बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातें ज़्यादा होती है, राइट. तो आपको अपनी कम्युनिटी ज़रूर बनेगी. आप अपनी नेक्स्ट 3 years में कम्युनिटी बना लेंगे और उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, और वो आपके आइडियाज़ को सराहेंगे भी. देन यू हैव फॉर्चूना कार्ड. इट सेज लक. वी सी मनी कमिंग इन फ्रॉम अबव एंड वी ऑल्सो सी यू स्पेंडिंग मनी इन द मटीरियल वर्ल्ड. So you're going to be someone who's going to enjoy the luxuries of life as well. And you are going to accept your weirdness, accept your eccentricity, and people will love your eccentric nature. You will have many students in the next 3 years. People are जैसे स्टूडेंट यानी समवन जो आपसे सीखता है ना, इसी को ही हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल जी मेरा स्टूडेंट है क्योंकि वो मुझसे सीखता है, मैं उसका टीचर हूँ. उसी तरह आप कईयों के टीचर बनेंगे. आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे हाउ टू नॉट टू बी अ स्लेव, हाउ टू हैव अ गुड लाइफ, हाउ टू फॉलो योर पैशन. या जो आपके अंदर कला है ना, पाइल नंबर 3, चाहे वो गाना गाने की कला है, चाहे वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की कला है, आपके अंदर एक्टिंग की कला है, आपके अंदर कोई ऐसा सिलाई बुनाई से रिलेटेड कला है, आपके अंदर जो भी कला है, चाहे मिमिक्री की कला है, कोई भी कला है, आप उस कला से पैसे कमाने वाले हैं और उस पैसे को इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे. नेक्स्ट 3 years में यू योर सेल्फ कैन ऑल्सो बी अ स्टूडेंट, विल लर्न और विल एक्चुअली अपस्किल योर सेल्फ, विल polish your skill. And I do feel pile number 3, you guys still don't know what you want to do in life. या there is confusion, या आपको अभी भी जीना नहीं आ रहा. दूसरा कहता है कि ऐसा ऐसा करना, तो आप वैसा वैसा कर देते हैं, बट आपका अपना कोई ओपिनियन, अपना कोई स्टैंड मेरे को यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको बचपन से आदत है फॉलो करो जो दूसरे कह रहे हैं. बट when you become very independent in life, when you are an independent individual, आप खुद अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना शुरू कर देते हैं. आप खुद एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो प्लान करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है और कहता है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना. खुद विजनरी बन जाते हैं. दिस इज़ वॉट यू आर गोना बिकम. नाउ अदर्स कैन नॉट डिक्टेट योर लाइफ, you will dictate others' life. You are the one who is going to hold the authority. इस प्रिंस से आप किंग बनने वाले हैं. देन वी हैव द हील कार्ड. तो अब अपने इनर चाइल्ड को भी मुझे यहाँ दिखता है कि हील करेंगे. जो स्टूडेंट लाइफ में जो आप पर ज़ख्म हुए, आप उसको भी हील करके आगे बढ़ने वाले हैं. और आप एक ऐसी पोजीशन पर आएंगे जहाँ पर यू विल गेट द नेम फेम, जहाँ पर you will have your own community. Again, definitely many of you can be on social media, will get a lot of name and fame, subscribers or followers on social media, and will show your skill there. All right. So आप अपना मन पसंदीदा मुझे यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, and that too on a big scale 3 years from now. Then we have coffin. Old self का death हो जाता है, न्यू सेल्फ जो है वो बाहर आता है. ओल्ड सेल्फ का एंड हो रहा है. देन वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून. यहाँ पर भी ये पर्सन को फ्रॉम अबव मनी आ रहा है और वो उस मटेरियल वर्ल्ड में मनी डाल रहे हैं. यानी आपके जो मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें हैं, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस, वो आप सब खरीद रहे हैं. आपकी मन की इच्छाएं आप पूरी करते हैं. ग्रेट फॉर्च्यून यानी बहुत अच्छा मनी आपके पास है. लक एंड फॉर्च्यून आपके साथ है. यू आर नॉट मेंट टू बी अ वर्कर, यू आर द क्वीन बी. पाइल नंबर 3, you belong on the stage, not in the crowd. All right, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे. स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं, सम्मानित जीवन जीने के लिए पैदा हुए. अगेन मेनी ऑफ यू विल बी उत्तर फल्गुनी पीपल, उत्तर फल्गुनी या पूर्व फल्गुनी पीपल. ये नक्षत्र लियो और वर्गों में होता है. स्पेशली उत्तर फल्गुनी नक्षत्र मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है. उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र मुझे यहाँ प्रोमिनेंट फील हो रहा है. उत्तर भाद्रपदा जो है पाइसिस में होता है, तो इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे.
And you guys are the people who are natural motivational speakers as well. Somehow you're able to motivate others. Then we have sudden wealth. Suddenly जो है 3 years from now आपके पास सडनली बहुत सारा पैसा आता है, सडनली आपका बहुत अच्छा नेम फेम हो जाता है, सडनली ये चीज़ें होती हैं. एंड वी हैव 777. 7 नंबर इज़ ऑफ केतु. केतु जो है वो ट्रिलियनेयर बनाता है. मिलियनेयर राहु बनाता है, ट्रिलियनेयर केतु बनाता है. तो वीनस केतु कंजंक्शन हो सकता है. वीनस केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. 5-9 प्लेज अवे फ्रॉम योर चार्ट, या वीनस के आगे केतु बैठा हो. दिस कैन हैपन विच शोज कि जब पैसा आएगा तो आप उस मनी को एंजॉय भी करेंगे, बट इवेंचुअली विल फील लाइक कि अब पैसा तो है, अब क्या करें. So you will start to help other people as well. You will become this natural philanthropist as well. Would want to do something good for the society as well. क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी ले आएगा, एक स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर ले आता है पैसा आने से, धन आने से. तो दिस इज ऑल्सो गोना हैपन. समथिंग मोर, यहाँ पर हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, पर्सनल लाइफ और हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए. तो सबसे पहले करियर, पाइल नंबर 3 का करियर. ओके, आई ऑल्सो फील मेनी ऑफ यू आर गोना पब्लिश योर बुक्स एंड विल बी योर बुक्स आर गोना बी बेस्ट सेलर्स इन द नेक्स्ट 3 years. अच्छा, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्रिएटिविटी की एनर्जी है. फायर एलिमेंट क्रिएटिव होता है, मतलब एक पैशन को हम फायर एलिमेंट से जोड़ते हैं, राइट. तो आई सी, क्योंकि करियर के लिए कार्ड निकला है, तो आप कुछ अब लाइक राइट नाउ अब जो है कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में स्टार्ट करना शुरू करेंगे. यू गाइज आर गोना बी द पीपल जो कुछ अपने पैशन से रिलेटेड करेगा. यू गाइज कैन बी पेंटर्स, यू गाइज कैन बी आर्टिस्ट, यू गाइज कैन बी द पीपल जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या जो लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं. मतलब क्रिएटिव, मुझे एक क्रिएटिव दिशा में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं. अगेन वीनस की महादशा अंतरदशा या सन की महादशा अंतरदशा आपने शुरू की हो सकती है अभी, या करने वाले हो ये शुरू श्रोत्री दशा में. और आने वाले 3 years में आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, बिकॉज फायर एलिमेंट है. अग्नि कैन नॉट बी इग्नोर्ड, चाहे वो बॉन फायर की अग्नि है, हवन कुंड की अग्नि है, अग्नि कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो यू कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड, पाइल नंबर 3 बाय अदर्स. तो नेम फेम तो मिलना ही मिलना है ड्यू टू योर क्रिएटिविटी. देन वी हैव 9 of Pentacles. 9 of Pentacles is about the rich lady or the rich man. 9 of Pentacles है खुशियाँ ही खुशियाँ, लग्जरीज ही लग्जरी, सुकून ही सुकून, कंफर्ट ही कंफर्ट होना. दैट इज़ 9 of Pentacles. और एक दोस्त भी. 9 of Pentacles ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ फ्रेंड और 2 friends. ऐसी दोस्ती भी होगी, और यू आर लिविंग, और साथ में यू आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ. जैसे इंसान जो है अपना मस्त लेटा हुआ है, इसको कोई चिंता नहीं है कि भाई समय हो गया है, नौकरी पर जाना है. नौकरी का क्या मतलब है? नौकरी का मतलब है नौकर, किसी के अंडर जो काम करता है. पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश रूल था, तो सारे कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स का काम करता है नहीं, वो नौकरी कर रहा है, वो नौकर है. तो इसका बड़ा मतलब मजाक उड़ाया जाता था. आई जस्ट रियलाइज़ कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो खुद ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, वो नौकरी करते थे ब्रिटिशर्स की. तो उनको भी मतलब चढ़ाया जाता था कि आप नौकर हैं. खैर, उन्होंने फिर अच्छे पैसे कमा के फिर ज़मीनें ले ली थी, और फिर इसी तरीके की लाइफ उन्होंने जी है उसके बाद. तो जब ब्रिटिश रूल चला गया, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लैंड्स ले ली थी, तो बस फिर वो मस्त अपना वैसे ही पड़े रहते थे, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे. एंड ही लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ. 100 साल की उन्होंने उम्र जी है, काफ़ी लंबी जीवन उन्होंने जिया है, व्यतीत करा है. आज की डेट में एक अर्बन एरिया में तो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब कि हम ऐसे टांग पे टांग रख कर आराम से चैन से अपना जीवन जिएं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव दीज डेज. फ्यूचर में तो और भी एक्सपेंसिव होगा. तो विद द 9 of Pentacles, what I see is irrespective what DNA you live in, but you're living like a king. किंग के पास तो चलो फिर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है.
आपके पास आई डोंट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत एक मस्त मौला जीवन जीते हैं। और क्योंकि करियर के बारे में कार्ड आया तो मस्त मौला करियर है, मन करा तो काम करा, नहीं करा मन तो पड़े हैं, पर पैसा फिर भी है। क्योंकि और ये चीज़ ना भाग्य से आती है, ये मेहनत से नहीं होता ये काम, ये भाग्य से होता है। आपका कोई गाना हिट हो जाना, आपकी कोई बुक बेस्ट सेलर बन जाना, है ना, ये भाग्य है। मेहनत से भाग्य नहीं कमाया जाता, मेहनत से तो कुछ चंद पैसे कमाए जाते हैं। अगर मेहनत से कुछ होता तो मज़दूर तो आज बिलियनेयर होता, पर ऐसा तो नहीं। तो भाग्य को कमाना ज़रूरी है। भाग्य कमाना यानी अच्छे कर्म करने, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर्म करना, अच्छा, ये भाग्य बनाता है आपका। तो व्हाट आई सी इज़ कि आप अपनी लाइफ में जो एक बैड टाइम था ना, नेगेटिव कर्मा जो आपका था, वो आप पे ऑफ कर चुके हैं और अब आप चढ़ती कला में हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्म अब जो है वो आपने पे ऑफ कर दिए, चुका दिए। तो आपकी जो नेगेटिव कर्म थे जो आपको पीछे धकेल रहे थे, वो है ही नहीं। आपने बचपन में ही, अर्ली एज में ही कई नेगेटिव कर्मा पे ऑफ कर दिए हैं। आप बचपन में ऐसी चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हो जहाँ पर यू ऑलवेज यूज टू आस्क कि मैं ही क्यों इतना बीमार होता हूँ, या मैं ही क्यों इतने कम नंबर लेकर आता हूँ, मेरा ही क्यों नहीं दिमाग चलता इन चीज़ों में, लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो कुछ नेगेटिव कर्मास डेफिनेटली वर बॉर्न इन अ दशा जो बहुत फेवरेबल नहीं थी। पाइल नंबर 3, मे बी यू वर इवन बॉर्न इन योर साढ़े सती। जैसे मून के साथ सैटर्न कंजंक्ट हो सकता है, मून के पिछले घर में या अगले घर में सैटर्न होगा, विच शोज दैट यू वर बॉर्न इन योर साढ़े सती। तो व्हेन यू वर बॉर्न, योर पेरेंट्स ऑल्सो वर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे वर डीलिंग विद फाइनेंशियल क्राइसिस। उस समय पर आप पैदा हुए थे, पर वो जो नेगेटिव समय था वो बचपन में ही आप काट चुके हो। तो इस वजह से अब चढ़ती कला, अब अच्छी दशाएं यानी अच्छा टाइम पीरियड्स आपके लिए आएंगे, जिसके कारण आप बहुत अच्छा धन भी कमाओगे, तो बहुत नेम फेम भी कमाओगे, रिस्पेक्ट भी कमाओगे, ये दिखता है। और टांग पे टांग रख कर भी बैठ जाओगे, आराम से आराम का जीवन भी व्यतीत करोगे, ये दिखता है। और अगेन ये भाग्य की बात है, ये मेहनत, मैं नहीं कहूँगी कि आपने बहुत मेहनत करी है सब पाने के लिए, नहीं, भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है, डेस्टिनी बहुत साथ दे रही है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए आया है, एंड इट shows that you have a lot of riches in your life. You are investing in the right direction. You have multiple investments, whether investments in metals, gold, silver, whatever, or you're investing in land, property, and you have invested your money in lot of places जहाँ से easy money, quick money आपको मिल जाता है। जैसे आपके पास पैसा आता है, आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, फ्लोर्स बना देते हैं, वहाँ अपना पीजी बना देते हैं। आपका फ़ोन नंबर किसी के फ़ोन में एज अ जो है लैंडलॉर्ड ऐसा सेव्ड हो, दिस कैन हैपन। तो वहाँ से आपको किराया आता चला जाता है। कोई ज़मीन थी आपकी, अब वो गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो ले ले, तो आपको वहाँ से पैसा आ जाता है। खैर वो तो वन टाइम पैसा है, बट एक होता है कि हमारे पास बहुत सारे जो है ऐसा जगह है जहाँ से हमें रेंटल इनकम आती है ना। तो ऐसी इनकम्स भी आप जनरेट अपने लिए कर लेते हैं। इवन अगेन जब एफडी भी करते हैं बैंक में, खैर वो थोड़ा कम ही इंटरेस्ट मिलता है, पर जो भी है उससे भी आप इनकम आपको आ ही जाती है। बट आपके कई रेंटल इनकम्स भी होंगी, आप कई जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से पैसा बनाएंगे। तो हम कहते हैं इस चीज़ को कि पैसे को पैसा अट्रैक्ट करता है, तो वो आपके केस में होगा। देन वी हैव फॉर पर्सनल लाइफ, वी हैव 4 of Wands। देखिए कितना हैप्पी सीन ये है। A place to hang your witch hat, basically a place where hangouts can happen. Like you will live the life of a party. You will be someone who will be connected with your loved ones, will celebrate with your loved ones. genuine connections होंगे जो आपके लिए genuinely खुश होंगे। आपकी खुशियों में जुड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, आपसे लोग बहुत प्यार भी करते हैं।
एंड फैमिली के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स वैसे मैरिज कार्ड भी होता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स बड़ी सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 3 दैट यू गाइज गेट मैरिड 3 years फ्रॉम नाउ, और आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू मिलते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स हियर ऑल्सो शोज मी दैट you are having a great time with your family, your family is really proud of you, और आप ना सोसाइटी में बहुत कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ताना मार रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं। सोसाइटी में आपकी बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है। अबाउट योर फिजिकल मेंटल हेल्थ वी हैव द मून। सो मून यहाँ पर ये शो कर, मून इज़ अबाउट अप्स एंड डाउन्स। मून कभी वैक्सिंग होता है, मून कभी वेनिंग में होता है, कभी फुल मून है, कभी नो मून है। मून इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। तो यहाँ पर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है अप्स एंड डाउन्स में रहती है, एक स्टेबल नहीं रहती है। ऑलराइट, इट डज शोज कि जब आप परेशान हैं, उदास हैं, है ना, तो आप जर्नलिंग करना शुरू कर देते हैं, कैरियोके गाना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, अपने मन को बैलेंस करते चले जाते हैं। मून ये भी शो करता है कि कोई मदरली नरिशमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है, आपका अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है। मून ये भी शो करता है कि फिज़िकल हेल्थ फ्लक्चुएट करती है, पर उसको भी आप बैलेंस इवेंचुअली कर लेते हैं। पता है क्यों फिजिकल या मेंटल ऐसे आपको अप्स एंड डाउन से स्टिल डील करना पड़ता है 3 years फ्रॉम नाउ? क्योंकि कुछ पास्ट ट्रॉमाज आपको स्टिल कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं एक बार डायरी ले जाना भूल गई थी अपने स्कूल में। मैं उस स्कूल में 12 साल तक रही थी, नर्सरी से लेकर 10th तक। तो अब जैसे ये वाला बैक ऑफ द माइंड ही आप कह सकते हैं कि मेरे मन में ये बात है, बैक ऑफ द माइंड ही है। अब ये सालों पुरानी, एक डेकेड पुरानी, 10 साल से भी पुरानी ये बात होगी, 10 साल से भी बहुत पुरानी बात होगी ये वाली, जो मैंने आपको बताया कि मैं एक बार डायरी ले जाना भूल गई थी और टीचर ने मेरे को ऐसा कहा वैसा कहा। तो ये मेरे को स्टिल याद है, यानी कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाई या फॉरगेट नहीं कर पाई। वैसे फॉरगिव तो मैंने कर दिया, पर भूल खुद मैं भी नहीं पाई, राइट। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे नेगेटिव ट्रॉमास हैं, क्या वो ईजी है भुलाना? नहीं, फॉरगिव करना ईजी हो सकता है कुछ केसेस में, फॉरगेट करना बड़ा मुश्किल है, इट्स टफ। और यही जो है आई वुड से कि अगर हम फॉरगेट कर देना, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि ये नेगेटिविटी ही जो होती है ना, नेगेटिव मेमोरीज ही जो होती हैं, ये भी हमारे माइंड, बॉडी, सोल को अफेक्ट करती है, नेगेटिव वे में ही अफेक्ट करती है और हेल्थ इश्यूज लेकर आती हैं। तो जस्ट लाइक यू, I am also someone who is working on myself, है ना। I am also human. I also make mistakes. I also try to be a very good human being and try to forget my traumas. Same, you are also doing it. 3 years from now कुछ चीज़ें आपके मन में स्टिल रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी जो पास्ट में आपके साथ हुई, बट you are like healing from it. It's a process. It will take time. तो इस वजह से कुछ मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं, बट आप अपने आप को काम डाउन भी कर लेते हो, ये भी मेरे को दिखता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 के बारे में। 3 years फ्रॉम नाउ we have compassion. You become very compassionate. Like you may even do something related to animals, animal rights. You're very compassionate. You may have a pet dog or a cat at your home. राइट, देन वी हैव पैशन। ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी पैशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और हम इस पाइल में पैशन की ही बात कर रहे थे। हम यही बात कर रहे थे दैट यू आर गोना लिव अ लाइफ जहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं तो बहुत पैशनेट होकर कर रहे हैं, अपने पैशन से रिलेटेड पैसा कमा रहे हैं, आपका इनर चाइल्ड आप हील कर लेंगे इवेंचुअली। आपके जो बचपन के सपने थे, शौक थे, वो आप ज़रूर पूरे करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, ये दिखता है। Then we have playfulness. तो दिस प्लेफुलनेस कार्ड डेफिनेटली शोज़ कि इनर चाइल्ड के लिए तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। जो टॉयज़ मम्मी पापा ने ख़रीद के नहीं दिए क्योंकि उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, तो आप वो टॉयज़ अपने लिए खरीदेंगे और उनके साथ खेलने का भी समय आपके पास होगा। 3 years फ्रॉम नाउ योर लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटिफुल। कोई आज सच ऐसे स्ट्रेस, टेंशन वाली, जल्दबाजी वाली, प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। आपने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना ली है।
अपने लिए एक बहुत सुंदर लाइफ बना ली है, सेटल्ड लाइफ बना रही, इसको कहते हैं रियल सेटलमेंट। जो दुनिया कहती है ना कि अब वही पैसे वैसे कमाने लग गए हो, अब मैरिज कर लो, सेटल डाउन हो जाओ, उसको सेटल डाउन नहीं होना कहते हैं। सेटल डाउन इंसान तब होता है जब वो अपने आप से सेटिस्फाइड होता है, दुनिया से भी सेटिस्फाइड होता है, अपने काम से, अपने कर्म से भी सेटिस्फाइड फील करता है, उसको हम सेटल्ड लाइफ कहते हैं। वो डेफिनेशन है सेटलमेंट की। तो ऐसा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ हो रहा है कि आप अपने आप से, दूसरों से, अपने कर्मों से, अपने करियर से, अपने पैसे से बहुत सेटिस्फाइड हो। सच में आप सेटल डाउन हो पाते हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ये दिखता है। मैरिज कार्ड भी है, तो मैरिज वाइज भी मेरे को आप में से कई सारे लोग सेटल्ड होते हुए दिख रहे हैं, उस वे में भी जो सोसाइटी कहती है उस वे में। वैसे सेटलमेंट मुझे यहाँ कुछ लोगों का आपका दिख रहा है। So yeah, that was pretty much it for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically देखें तो वही एक्वेरियस साइन हो गया, जेमिनाई, लिब्रा, ये एयर साइन तो प्रोमिनेंट है क्योंकि एयर साइंस में ही राहु का नक्षत्र आता है। जैसे कि जेमिनाई में आर्द्रा, लिब्रा में स्वाति और शतभिषा एक्वेरियस में। ये नक्षत्र एज राहु रूल्ड नक्षत्र है और राहु अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यू आर अ वेरी एसेंट्रिक, नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल पर्सन, पाइल नंबर 3। तो इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे इन साइंस में, इन नक्षत्र में। और इवन मैं कहूँगी कि वर्गो और लियो और पाइसिस में ही प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल, सॉरी, लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, फिर स्वाति, विशाखा। एंड देन एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्र में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, सो यप। एंड जैसे सैटर्न है, मर्क्यूरी है, वीनस है, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स यू होगा। जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होगा। मैनी ऑफ यू आर 1999, 2000, 2001, 2002 बॉर्न्स। आप लोग के चार्ट में जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट टुगेदर होंगे, या जुपिटर के आगे वाले घर में सैटर्न या जुपिटर के पीछे वाले घर में सैटर्न होगा। धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म हो रहा है चार्ट में। एंड मैनी ऑफ यू में हैव सैटर्न इन द 9th हाउस, है ना। सो ये कंडीशंस होंगी which shows that you're going to be a life long runner, always running in the race of life, always doing something or the other. आपसे वेला नहीं बैठा जाएगा, मतलब पूरी लाइफ पैसे कमाओगे, रिटायर नहीं होगे, कहने का मतलब ये है, रिटायरमेंट नहीं होगी। आप पूरी उम्र काम करना चाहेंगे क्योंकि आपका काम आपको काम जैसा लगेगा नहीं। यू आर गोइंग टू बी वेरी पैशनेट अबाउट करियर। तो करियर में ऐसा ही लगेगा कि भाई जोर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं फील होगा, आपको मज़ा आएगा एक्चुअली करियर में। दैट्स व्हाई यू गोना अर्न थ्रू आउट लाइफ, विल बी हैप्पी इन अर्निंग मनी, विल बी हैप्पी इन बीइंग इन करियर। So yep, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.